Hello students, today we are going to discuss social science of class 7, the chapter 5, and the topic is weather and climate. In day-to-day life, we always used to see that both the phenomena, the weather and the climate. We daily used to discuss about what is the weather today, what is the climate today, hot or cold, what is the weather today, rainy or sunny or something like that. We daily used to go through these phenomena. See, now here weather and climate are basic element of natural environment. These are the basic elements of the natural environment. It means कि ये जो चीजें हैं ये हमारे नेचर में डेली इस बारे में बात होती है और ये हमारे नेचर से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। दूसरा है मगर ये फेनोमेना दोनों नेचुरल फेनोमेना है, बट क्या है रियल में they have different meanings. So now we are going to discuss about the meanings of these things. Now we are going to first of all one by one we will discuss about weather and climate. So now first of all we will discuss about weather. What do you understand by weather? So weather. So first of all we will discuss about the words. The weather is the word derived from a German language word that is weather, and it is defined as the sum total of the current atmospheric pressure, the current atmospheric conditions at any given place. मतलब कहीं के किसी भी जगह का करंट एटमॉस्फेरिक अभी का तत्काल का करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब है यहाँ पे कि उस समय उस जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, वातावरण कैसा है। तो वहां क्या हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा धूप सनी होगा, विंडी या बहुत तेज हवा चल रही होगी, या हो सकता है वहां पे बहुत बारिश हो रही होगी, या हो सकता है मौसम बादल छाए हुए होंगे। ये सारे क्या है हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो हम वेदर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो किसी भी प्लेस का किसी भी जगह का करंट उस समय का तत्काल का जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जैसे अभी हमारा क्या है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, आसपास बहुत ही ज्यादा ठंड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। नाउ फोकस ऑन योर बुक, देयर आर सम लाइंस दैट all these atmospheric conditions, these are all atmospheric conditions, और स्नोई मींस क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्फ, जब बर्फबारी हो रही है, सनी, विंडी, रेनी, क्लाउडी या और स्नोई, these are all atmospheric conditions. So all of these atmospheric conditions are collectively known can be sunny, windy, rainy, cloudy or snowy. Anything will be there. But it depends upon the current atmospheric condition of the place. We are going to discuss about our next phenomena, that is climate. So first of all we will discuss about the derivation, the origin. The climate is a word derived from the Greek word that is klima, which means slope zone, that means slope zone. Now we move on the definition of this phenomena, that is climate refers to the average weather conditions prevailing at a place recorded over a long period of time. कहते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट रेफर्स टू एवरेज वेदर, मतलब किसी भी जगह का क्लाइमेट हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक हम वहां के बारे में, वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, बहुत लंबे समय तक उस जगह के वेदर को हम देखते हैं, और फिर हम ये एवरेज निकालते हैं कि कितने समय में वहां पे कौन कौन सा वेदर कंडीशन रहा है, ठीक है, कौन सा वेदर रहा है, और साथ ही साथ वैसा उस एरिया का क्लाइमेट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि
उस एरिया में कितने ज्यादा लंबे समय तक कोई वेदर कंडीशन सस्टेन कर पाया है। कहने का मतलब है कि अगर कोई किसी एरिया किसी भी प्लेस में, ठीक है, अगर लंबे समय तक ठंड ज्यादा रहती है तो इट मीन्स कि वहां का वेदर कंडीशन कैसा हो जाएगा, स्नोई हो जाएगा। जहां पे बारिश ज्यादा हो रही है वो रेनी हो जाएगा। तो हम ये क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए हम डिपेंड करते हैं किस पे, वहां के वेदर कंडीशंस पे। नाउ फोकस ऑन योर बुक, देयर आर सम मोर things given in your book that climate is one of the basic elements of our natural element, just we have discussed before. Climate affects the landforms, वहां की मिट्टी कैसी है, ये फर्क पड़ता है किससे, क्लाइमेट से। वेजिटेशन, वहां पे कैसा जानवर होगा, कैसा फल फूल का जन्म होगा, ये डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट पे। सॉइल टाइप, मिट्टी का कौन सा प्रकार होगा, ये डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट पे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, तो जैसा हमारा मिट्टी का प्रकार होगा उसी तरीके से हम वहां पे हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी होगा। नाउ द थर्ड वन, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट एंड द हाउस इन व्हिच वी लिव आर इंटीमेटली रिलेटेड टू द क्लाइमेट। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट कहता है कि आपका जो पहनावा है या फिर आपका जो रहन सहन है किसी भी प्लेस पे वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कैसे बच्चों, तो ये आप ध्यान दीजिए, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है तो वहां पे आप क्या करते हो, मोटे मोटे कपड़े बहुत लंबे समय तक, जैसे आप कश्मीर रीजन में चले जाइए तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा समय ठंड रहती है, तो वहां पे आप क्या कहते हो, लंबे समय तक लोग ठंड के कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना, जैसे आप अभी यहाँ पे पहन रहे हो। फिर जिस जगह पे जैसे राजस्थान वाले एरिया में चले जाइए तो वहां पे क्या होता है, गर्मी बहुत लंबे समय तक होती है, तो क्या होता है वहां पे लोग गर्मियों में पहनने वाले कपड़े हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। फिर आप ऐसे एरियाज में चले जाइए जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे आपको पता है कि बारिश यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है मानसीराम। तो अगर आप उस एरिया में रहते हो, उस प्लेस में रहते हो, तो वहां पे हम ज्यादा कपड़े कैसे पहनेंगे, वैसे कपड़े पहनेंगे जो हमें बारिश से बचा सके। हमारे घर वहां पे कैसे होते हैं, तो स्लोप होता है, वहां घर जो होते हैं वहां पे स्लोपी, उनका जो छत होता है वो स्लोप में बना होता है ताकि वहां पे बारिश का पानी ना जम सके। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर। नाउ today's question write in your copy and I hope you will complete it. That today's question is, write down the three difference between the climate and weather. Thank you.